All right. Now I'm sharing my screen. Let me know whether it is visible to you. Okay. Yes. All right. So let's start from the topic which was in between in earlier lecture. So today is, I think it's 10th lecture for higher education. Let's start with this report, AISHE, ASHE report. ASHE, what does it stands for? AISHE. Anyone? Told you. AISHE. Anyone? इसका नाम इसका फुल फॉर्म क्या All है? India. हाँ, All India All India Services of Higher Education. not services, survey. All India हाँ, survey. सर्वे मैम बोल हाँ, रहे थे. हाँ, India Survey, Higher Education. हाँ, All India Survey on Higher Education. So this report is we are looking for the year 2018-2019. Right? It has started actually by the MHRD to conduct all this, annual. Actually, it is a web-based report based on the different data collection. All right, and started since to 2010-11. And this basically this survey covers all the institutions in the country engaged, for higher education sector. And there are so many parameters that data have been collected, like number of teachers, number of students enrolled, um, how programs are running in the universities and different institutions, what are the examination patterns they are following, how many courses they are running presently, and what more can be done. Based on those reports, they can enhance their services. Then what is the standard of their education, what about their results, and what are the finance, how much they spend on their infrastructure or for the growth of their laboratories or project work and so on. So all these indicators of educational development, uh, they calculate, the institution density, then GER, that is the, you can say, gross enrollment ratio, then pupil teacher, student teacher ratio. And based on all those data, they, because all this data will be useful in making the, the further informed policy and for making certain decisions, all right, for the development of education sector. So basically, based on those reports, we are looking for the report of the year 2018-19. तो एशे जो है ये है ऑल इंडिया, मतलब कि पूरे जो भारत का पूरे उसका सर्वे करता है हायर एजुकेशन सेक्टर में, कि मतलब उसमें वो ये भी देखते हैं कि कितना स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, कितने टीचर्स अभी प्रेजेंटली जो है वो काम कर रहे हैं, या फिर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है ना, कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं अभी एजुकेशन सेक्टर में या कॉलेजेस में, कैसे जो है कहना चाहिए कि उनका जो फाइनेंस स्टेटस है वो क्या है, कितना पैसा जो है वो लगाते हैं, कितना खर्च करते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है। तो ये सारी चीजों के बारे में वो डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये डेटा क्यों कलेक्ट करना है, क्योंकि इससे आप पूरे ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन है, उसके बारे में आपको एक
बहुत अच्छा डेटा मिल जाता है कि आपके, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली या नेशनली भी आप जब देखते हो तो आप पूरा उस समय सर्वे नहीं करते हो, आप बस उस रिपोर्ट को देखते हो कि हाँ इस ईयर की रिपोर्ट ये है, तो इसमें क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या क्या चीजें और करनी है, किस सेक्टर में आपको काम ज्यादा करने हैं, या आपकी कंट्री का जो इंस्टीट्यूशन डेंसिटी है, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं आपके यहाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है आपका, टीचर जो है वो कितने स्टूडेंट्स के बीच में एक टीचर है ना, वो जो रेशो है वो, तो और एक स्टूडेंट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत उपयोगी होती हैं किसी भी नेशन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, खासकर हायर एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इस पे बेस्ड जो है वो आगे की स्कीम बन सकती है, आगे के पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट बनाती है, और किस सेक्टर में काम करना बाकी है, किसमें काम अच्छा हो रहा है, तो जिसमें बाकी है, जिसमें कुछ ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, वो पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशन उस हिसाब से बनते हैं। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो रिपोर्ट है 1819 की। Now, as per this report, we are having 962 colleges, universities. So approximately you can say 1,000 universities, all right? And more than 1,000, like maybe 50 or 100 more. So 1,000 to 1,100 universities you can say by to 2050 to 2025, all right? Number of colleges, approximately you can say 40,000 colleges. Standalone institutions which are self-financed, independent, all right, private institutions, they are more or less of like 9,190, approximately, you can say 10,000. Now, 16 women universities, and among these, Uttar Pradesh has highest student enrollment ratio. Bangalore urban tops in terms of number of colleges. Means 880 means roughly you can say 900 colleges in one city, that is Bangalore. So just remember these data, and what are the key issues facing for spread of higher education in India. So we have 5 main goals in this sector in higher education. First is accessibility. Accessibility means if you want to have a very you can say good education system, which should be like more and more people are you can say educated in a particular area. So the main thing is if a person wants to get some certification course or want to have some degree, so he or she has that access, it should be approachable to him or her. So every institution, you have that number of institutions in the country, so that each and every person can access those facilities. All right, it can be easily approachable for a person to get admission, to get all the formalities done, to get the course, to get the material for which whichever is needed for that particular course. And after the completion of the course, he or she get the certificate or the degree. And then second is equity. Equity involves fair access to the people, maybe poor, maybe financially, socially weaker sections. All right. So all those groups should be a part of a system. All right, irrespective of their social status or their financial status. And then quality and excellence. All right, quality and excellence should be great, and it should be very, very good. Otherwise, there is no sense of getting the certificate or a degree course. And relevance. Relevance means it should be related to
the interest of the people. It should be related to the need of the time, like whatever is desired or what is required at particular place or a particular time. Like there is a place where there are so many industries related to textile. All right, so you must have some college or some, you can say polytechnic or ITI sort of, which is related to that industry. All right, because there are so many industries, and if there is some refinery or some metal industry, or you can say, some mining area, so that the requirement is different. So there should be some institutions which is like the people can approach that institution or a college and get that you can say certified course, and then get the employment near to their home. And it should be relevant to the time. Like today, everything is ICT based. So there should be some training institutions which can train people, to access those modern techniques. Then value-based education, it involves, the basic moral values among the youth. Now, UGC guideline जो है for student-teacher ratio, which is 30:1. However, it is as high as 100:1 in some of the states. अब ये जो रिपोर्ट है 2018-19 की, उसके अनुसार जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, वो 1000 के करीब हैं, कॉलेजेस 40,000 के करीब हैं, जो प्राइवेट स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं वो 10,000 के करीब हैं। इसमें 16 जो हैं वो महिला विश्वविद्यालय हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं। उसका रीजन भी यही है क्योंकि इट इज़ वेरी बहुत ज़्यादा आबादी वाला, और एरिया वाइज भी आप कहो, क्षेत्रफल के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश का जो है वो स्टार्ट फर्स्ट है। तो और यदि शहरों की बात करें तो बेंगलोर जो है, बेंगलुरु जो है वो टॉप करता है, जिसमें सिर्फ बेंगलोर में ही करीबन 1000 कॉलेजेस हैं। 880 हैं मोर और लेस। आप यदि रफली दिमाग में रखना चाहो तो 1000 के करीब ऐसा आप डेटा अपने दिमाग में रख सकते हो। मैम ये बेंगलोर वाला नहीं समझ में आया, थोड़ा प्लीज बताइए कि 880 क्या है, मतलब क्या कैसे है? करता है, क्या है? जैसे है ना कि यहाँ पर कहाँ पर है, बेंगलुरु अर्बन टॉप्स इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज 880, इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो बेंगलोर का आसपास के गांवों को कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ बैंगलोर सिटी, ठीक है, बैंगलोर सिटी में ही इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो उसका नंबर 1 है। जैसे स्टेट में देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट एनरोलमेंट है, ठीक है। अब यहाँ बैंगलोर में ही सिर्फ 880 कॉलेजेस हैं, तो इसका एनरोलमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो शहर के हिसाब से बात करें तो बैंगलोर सबसे ऊपर आता है, और राज्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, वही समझ गया मैं। हम सोचे पूरा भारत का इसमें डेटा होना चाहिए, अगर मतलब हो रहा है तो। हाँ, तो यही भारत का ही है। भारत में सबसे टॉप जो है उसका डेटा आपको यहाँ पे दिया है जी। ठीक है। तो और उसमें जो है जो 5 मेन चीजें जो जरूरी होती हैं, या जो जिसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो, या जब भी कोई आप एक मिशन लेके आते हो, जैसे कि हायर एजुकेशन को फैलाना है पूरे देश में, तो उसके लिए 5 चीजें जो हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए, दिमाग में रखी है। और वो जो 5 चीजें हैं उसमें एक सबसे पहली चीज है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का ये मतलब है कि कोई भी यदि चाहता है कि हम पढ़ें, या हम इतना पढ़ चुके हैं लेकिन हम और पढ़ें, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उस पर्सन को बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा दूर जा करके यदि यूनिवर्सिटी मिलती है तो वो शायद वो स्टेप नहीं लेगा। लेकिन यदि उसके आसपास ही कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर दूर भी है, तो ऐसा कोई डिस्टेंस का कोर्स वो कर सकता है क्या, तो उसके अप्रोच में वो होना चाहिए। मतलब कुछ भी यदि कोई कहीं से भी कुछ भी करना चाहता है, कोई भी
पर्सन, कोई भी नागरिक, तो उसके लिए वो अप्रोचेबल होना चाहिए, उसके लिए वो मतलब आसान होना चाहिए वो चीज, कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कॉलेज से मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए इतने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हर जगह पे, स्पेशली रिमोट एरियाज पे भी होना चाहिए। यदि नहीं है तो कुछ ऐसा माध्यम होना चाहिए कि वो वहां रह के भी उस कहना चाहिए कि कोर्स को वो कर सके। फिर इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि समानता, मतलब कोई भी एजुकेशन का कोई भी एरिया हो, वो हर किसी के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली यानी कि क्या बोलेंगे, आर्थिक रूप से यदि वो कमजोर है, गरीब है, या फिर सोशली मतलब सामाजिक तौर पे भी यदि वो अ, नीचे लेवल का है, या उसका ऐसा स्तर नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ सके या ऐसा कर सके, तो उसके लिए समानता लाना, मतलब हर कोई, आपका किसी का माइक ओपन है, उसको म्यूट करिए, तो वो भी जो है वो पढ़ सके, मतलब उसकी फीस पे आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए। या फिर कोई बहुत ही गरीब है या अप्रोच नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कुछ आप सीट्स दे दो कि भाई आप आओ और पढ़ो, है ना, और आगे बढ़ो। तो उस तरह से सोशली और इकोनॉमिकली जो भी लोग एक लेवल से नीचे हैं, उनको भी ऊपर लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तभी आपका ओवरऑल जो ग्रॉस जिसे कहते हैं ना, कि तभी आप इस मामले में या शिक्षा के मामले में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि एक पोर्शन, बहुत ज्यादा आबादी का एक पोर्शन यदि नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ सकता है, तो उस केस में वो पूरे नेशन के लिए एक तरह से नीचे ले जाने वाली बात होती है। यदि आदमी पढ़ा लिखा है, वो अपना भला बुरा समझ सकता है, वो अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम बना सकता है, और उसके बाद में वो उस एजुकेशन को, अपने स्टेटस को आगे बढ़ाए, मतलब कि यदि फाइनेंशियली पुअर है तो अपने फैमिली को वो एक लेवल तक बढ़ा सकता है, कमा सकता है उस पढ़ाई से, या सोशली भी वो बहुत पुअर है तो अपने एक लेवल को, अपने जो समाज के लेवल को एक तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो इसमें इंडिविजुअल, मतलब एक कहना चाहिए एक नागरिक का ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कहाँ से ऊपर उठेगा, सबसे पहला स्टेज है पढ़ाई, शिक्षा। तो इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि इसमें समानता होना चाहिए, कि आदमी जाए, पढ़ाई करे और अपना भला बुरा सोचे, अपने काम के बारे में सोचे, एक डायरेक्शन ले लाइफ के लिए कि कहाँ जाना है। देन क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, अब आपने कोर्सेज चला दिए, आपने अप्रोचेबल बना दिया, है ना, सब लोग जाके पढ़ सकते हैं, बट उसका क्वालिटी क्या है, मतलब क्या वो वास्तव में जिस कोर्स को कर रहा है उसको वो पूरी तरह सीख पा रहा है, या उसमें कोई कमियां हैं, या तो टीचर्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कोर्स जो है वो मटेरियल, या एग्जामिनेशन का तरीका, या यदि कोई प्रोजेक्ट, कोई लैबोरेटरी वर्क है उसमें, तो वो है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। फिर रेलिवेंस, रेलिवेंस का ये मतलब है कि आप जो कोर्सेज चला रहे हैं, या जो भी कहना चाहिए सर्टिफिकेशन करा रहे हो, तो वो रेलिवेंट है कि नहीं, वो कहना चाहिए कि समय के हिसाब से या उस जगह के हिसाब से वो आवश्यक है या नहीं, है ना। पता चला कहीं और कुछ और की जरूरत है, कोई कोर्सेज और चल रहे हैं, तो उसको वो जॉब ही नहीं मिल रहा, है ना, उसको वो रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, समय के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आज समय इतना टेक्निकली बहुत साउंड है सारी चीजें, तो वो चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है ना। हर मतलब हायर एजुकेशन स्पेशली बोला जाए तो टेक्निकली भी आपको उस साउंड होना पड़ेगा उसके लिए। फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में ये है कि भाई आप उसमें मॉरल्स भी डाल, नैतिक शिक्षा भी डाल उसमें आनी चाहिए। आदमी को
या किसी भी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो राइट्स तो हमें पता है, लेकिन हमारे ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें एक समाज में, एक स्कूल में, कॉलेज में या घर में किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें जिंदगी जीनी चाहिए, है ना। इलीगल मीन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो क्या वो एथिक्स बेस्ड है, क्या वो सही है, क्या वो लॉफुल है, कानून की तरह से क्या वो सही है। तो ये सारी चीजें भी एजुकेशन में आनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज की यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से स्टूडेंट टीचर जो रेशो है वो 30:1 होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट 30 हैं तो उसपे एक शिक्षक, एक टीचर होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं मतलब 100 पे भी एक है। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स में ये रिपोर्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है, उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Now the next topic, which is again important one, is governance, polity, and administration. Now, what do you mean by this term governance? क्या समझ में आता है आपको ये जो वर्ड है गवर्नेंस से? मतलब कि सरकार शिक्षा प्रणाली पर किस तरह से अपनी नीतियों को, पॉलिसियों को बनाती है, कैसे लागू करा के सामान्य जनमानस को या जो लोग हैं उनको उन्हें सफलता दिला पाए, जिससे कि उन चीज़ों को लाभ ले पाए। हाँ, शिक्षा तो खैर बाद में आ गई, इसमें हम अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन के से इट्स अ जर्नल टर्म, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, because these three things play important role, very crucial and important role in the enhancement or in the development of any individual, to any society, to any you can say state or any nation. तो हर किसी देश के लिए, देश से पहले आ जाता है आपका जो स्टेट है, राज्य है, उससे के बाद आ जाता है आपका जो शहर है, और शहर में आ जाता है आपकी खुद की फैमिली, आपका समाज, और समाज से में आ जाता है आपकी फैमिली, और फैमिली में आ जाते हैं आप खुद। तो जब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, कुछ भी होगा, है ना, उसको एक जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक माहौल की जरूरत होती है ना। तो उसको कौन गवर्न करेगा, उसको कौन देखेगा, कौन डिसाइड करेगा कि एक इंसान जो जन्म लेता है उसको किस किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन कौन सी चीजें उसको चाहिए, है ना। जैसे कि आपने अपना घर बना लिया, तो आप क्या कहीं भी घर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। आप कहीं पर्टिकुलर, उसका भी एक नियम है, ठीक है, कि इस तरह से आपने घर बनाना है, यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसको आपको किस तरह से पढ़ाना है, कहीं इधर उधर आपको नहीं उसको भटकाना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सबको गवर्न कौन करेगा, ये सबको चलाएगा कौन? तो उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है, एंड दैट सिस्टम इज गवर्नेंस. All right, so you can say that basically governance signifies the meaning of you can say uh, government, or referring to some process of or you can say a system or a process, how to rule, how to manage, how to control over all the the area, the people. So that way a system, you can say a whole body is there to make such system, make the process to run in a particular direction. And and it is very necessary to to have a stand, to have a level within the whole world. So for that, you should have a firm, a very strong government, a very strong, you can say, a group of people, who can make some policies, who can make some management system, or you can say a particular process to how to manage, how to rule, how to control
over all the different sectors which a people, which a person deals with in their whole life. So basically, these three terms, governance, polity. Polity means, some organized way, the structured governance, you can say, of any nation. This must have, some organized, some, you can say, a very, very fine structure, very, very definite, very, very firm structure. And then the term administration. Administration is to administer all these things all together, all the laws, all the different bodies, how they work, what are the policies they have to follow, what are the rules they have to follow, and make the citizens to follow. So all these three terms, they have origin in the constitution of any country. Now, this word constitution is very, very important for any country, all right? Now, what is this constitution means? Constitution is basically a living document. Why it is living document? Because it is a document which is written somewhere in the past based on those circumstances. But as the circumstances changes, as the situations changes, as the environment, as the, you can say, the whole system changes. So accordingly, there should be some procedure, or you can say some provision to make it change, make some amendments, make some changes within certain articles, within certain sections. So it is an instrument that makes a government system to work. Every agency, every department in our system, in any other country's system, there should be some, you can say, legal document or some structure. Accordingly, they work. Accordingly, there are certain provisions how to recruit people and how they work, what are the rules and regulations they have to follow, at how many, at which age they should enter, at which age they should retire, and what is the hierarchy, from where they'll start, from where they end, how they move in vertical direction. So all these things are written in a legal document in a very fine, in a very clear way. So that's why it is called the legal document, and that makes the government system to work. Now, the Constitution of USA is written in 1787, and this became the world's first written constitution. We have taken certain things from the Constitution of USA, we'll see later. And the Magna Carta, the Magna Carta, which is the original, you can say, a very remarkable, you can say, in the field of constitution. It is originated in UK, and such old document it is, and it is considered as mother of all constitutions and fundamental rights. तो ये जो तीन टर्म आप देख रहे हो, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो सारी चीजें हैं उसका बेस जो है, क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज हैं, खासकर हमारे देश में बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर हैं. तो वो सारे लोग आपस में मिलजुल कर किस तरह से रह सकते हैं, सिर्फ अपना ही डेवलपमेंट ना करें बल्कि अपने समाज का, अपने देश का किस तरह से वो एक तरह से जी सकते हैं, एक तरह से अपनी जिंदगी को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं.
तो उसके लिए एक गवर्नेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे सिस्टम हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो पूरे देश में जो कि इन पे वॉच रखे, जो कि इन पे इनको संभाले, इनको गाइड करे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये जो है ये लॉज हैं जिसको आपको फॉलो करना है, यदि आप नहीं करेंगे तो आपके साथ में ये एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसीजर है, ये सारे जो रूल्स हैं जो मैनेज करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं गवर्नेंस, उसको कहते हैं सरकार। एक तरह से शासन जिसे बोलते हैं, सरकार गवर्नमेंट बोलेंगे और गवर्नेंस इज शासन। किस तरह से जो है एक गवर्नमेंट को या एक सरकार को शासन करना चाहिए। और पॉलिटी का मतलब ये है कि आप किस तरह से उसको एक तरह से स्ट्रक्चर करते हो, एक तरह के फ्रेमवर्क में डालते हो, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो हर चीज को। ठीक है, जैसे कि किसी ने जन्म लिया तो भाई आपको क्या कराना है, कहाँ आपको जाना है, हॉस्पिटल जाना है, वहां पे आप अपने आप को इनरोल कराओगे। फिर बर्थ हुआ बच्चे का तो उसका सर्टिफिकेट बनाओगे, उसके कुछ साल बाद में आपको उसको एडमिशन कराना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। फिर वो बच्चा आगे पढ़ता है तो फिर स्कूल में बड़े स्कूल में जाएगा तो ये चीजें आपको करनी है। यदि आप नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आप हायर एजुकेशन में जाते हो, उसके बाद में आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, या फिर अपना खुद का भी बिजनेस का आप करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। फैमिली का बिजनेस है तो उनको भी कुछ कुछ चीजों को फॉलो करना है, कुछ टैक्स आपको देना है, आपकी जो सैलरी आएगी वो इस तरह से आएगी, उसको आप उसके में इतना टैक्स कटेगा, या कोई भी सामान आपने बनाया तो उस पे ये उसके लिए ये प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। तो हर चीज के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब पूरी तरह से हर तरीके से कहना चाहिए कि सिस्टमेटिकली सब चीजें तैयार हैं और उसको आपको फॉलो करना ही है यदि आप किसी भी देश में रहते हैं। तो हर कोई कहीं भी जाके कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चीज है, तो ये है हो गई पॉलिटी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक तरह से प्रशासन प्रशासन क्या करता है कि शासन और सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं उसको वो रन करता है। उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट उसका अलग प्रोसीजर है। तो वो सारी चीजें जब एक साथ हम कहते हैं तो उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आता है। तो संविधान एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक इस तरह की व्यवस्था है जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि किसी भी सरकार को किस तरह वर्क करना चाहिए, किस तरह से वो सरकार अपना काम करेगी, ये सारी चीजें बताने, या फिर को वहाँ के जो नागरिक हैं वो किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, या वो किसी भी काम क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। तो इसके लिए जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस के। एक चीज पूछना चाहूंगा, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर क्या है? पॉलिटी मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि इस तरह से जो है गवर्नमेंट इस तरह से काम करेगी, है ना। एक कहना चाहिए कि एक किसी भी देश में यदि कोई भी देश है तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज से पॉलिसीज कौन बनाएगा, तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में की हुई है। देखो गवर्नेंस जो है वो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है कि आपको इस तरह से रूल करना है, लेकिन उस रूल करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कुछ उसका स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि आपका देश है, आपके देश में सरकार जो है वो जनता चुनती है, और जनता चुनने के बाद में जो है एक मंत्रिमंडल बनता है, एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी पार्टी जीतती है। फिर जो प्रेसिडेंट है उसको फर्स्ट, आपने बोला कि फर्स्ट सिटीजन है वो, उसको आपकी दूसरी पार्लियामेंट का सेक्शन, राज्यसभा जो है वो चुनती है। वो जरूरी नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही व्यक्ति हो। तो इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है
है ना। अब उसको चलाने के लिए जैसे कि आपके यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, या न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, वो सारी चीजें आएंगी पॉलिटी। और इन सबको गवर्न करने के लिए, इन सबको फंक्शनिंग, अब ये तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिसीज बना दी, स्ट्रक्चर बना दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर बना दिया, ये अब उसको आपको पब्लिक तक पहुंचाना है, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है। तो वो एक आदमी या एक सेक्शन का काम नहीं है ना, उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए और कुछ ऐसे लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जो प्रॉपर उसमें ट्रेंड हों, तो वो उसमें रिक्रूट करें। जैसे कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, या समाज कल्याण का है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर टेक्निकल कोई डिपार्टमेंट है ना। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट, या फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो इसमें सारे मिनिस्टर्स ही तो काम नहीं करते ना, उसके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, जिसे आप इस तरह समझो, गवर्नेंस का मतलब है सरकार, है ना। और नहीं, गवर्नमेंट का मतलब है सरकार, गवर्नेंस का मतलब है शासन, और पॉलिटी का हिंदी वर्ड मुझे नीति हो सकता है। हाँ, तो वो नीति समझ लीजिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है प्रशासन, है ना। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर छोटी छोटी जगहों पे। जैसे कि एक डिपार्टमेंट बना, उसका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बहुत बड़े शहर में होगा, छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे स्टेट्स में होंगे या दूसरे शहर में होंगे, जो कि एक स्टेट, कुछ जो डिपार्टमेंट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कि रेलवेज है ना, दूर संचार विभाग है, या इस तरह के जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, लेकिन वो हर क्षेत्र पे काम करते हैं, है ना। उसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है, उनके ऑफिसर्स अलग तरह से चयन होके आते हैं, यूपीएससी अलग सिलेक्शन करता है, दूसरे जो एसएससी है या स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग तरह से रिक्रूट करता है। तो छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे ऑफिसेस में कुछ लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, कुछ लोग जो है वो जो काम है उसको संभालते हैं। तो वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। Now, Constituent Assembly. Now, this idea of constitution was said that it is given by M.N. Roy, which was a political philosopher. So, idea came from this professor M.N. Roy, and this Constituent Assembly of India, which was came into effect in 1946 to write the constitution for the country under, you can say, the effect, under the cabinet mission plan. And it took place on, more correctly, on 9th of December 1946. And Dr. Sachinananda Sinha was elected as its ad hoc chairman. All right. So the first, this Constituent Assembly of India formed on 9th of December 1946. And Dr. Sachinananda Sinha was elected as first ad hoc chairman, not the permanent. And on 11th of December 1946, Dr. Rajendra Prasad, all right, Dr. Rajendra Prasad was elected as permanent chairman of the Constituent Assembly. So just note down here, the year is 1946, it's okay. And on 13th of December 1946, the objective resolution was introduced by Jawaharlal Nehru, and which later became the basis of the preamble to our constitution. This is important, but not much, because the second, this one is very, very important. Dr. Bhimrao Ambedkar was elected as a chairman of drafting committee. The whole analysis, whole research of different constitutions of different countries,
and then the things taken from different constitution all over the world was collected, was researched and taken into account by Dr. Bhimrao Ambedkar. And the Constituent Assembly approved the Constitution on 11th of November 1949, and it came into effect on 26 January 1950. So this Constituent Assembly more or less take 2 years, 11 months and 8 days to complete the Constitution. And India became a republic on the same day. Now, initially, this Constitution had 395, you can say, articles, and in 22 parts, and 8 schedules, which are presently 12. And the first speaker of the Legislative Assembly was Dr. G.V. Mavlankar. It's not that much. And Constituent Assembly consists of 389 members. Out of these 389 members, 296 were elected from the British India, and 93 were the representative of native states, different states. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम यदि जाने तो ये आइडिया जो आया, ये कहना चाहिए कि किसी ने सोचा, तो वो थे एम.एन. रॉय, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड वे में एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी सरकार को चलाएंगे, किस तरह से हम जो है वो क्योंकि इंडिपेंडेंसी मिल रही है आपको, तो आपको फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा कि आपकी सरकार जो आएगी वो किस तरह से आएगी, कैसे आप उसे चुनेंगे, कौन इसको चुन सकता है, किस तरह से आप अपने हेड को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद में उसके नीचे काम करने वाले जो ग्रुप होगा उसको आप क्या कहेंगे, कैसे वो फंक्शन करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह पे होनी चाहिए, है ना, ताकि आपके सामने एक कहना चाहिए कि एक लेवल हो, एक जिसको कि देख करके आप उसको काम करें। जैसे कि आपके टेक्स्ट हैं, है ना, या कोई भी आप योगा से रिलेटेड टेक्स्ट देख लो, तो आप उसका रेफरेंस देते हो कि ये चीज यहाँ पे इस तरह से बताई गई, इसीलिए ये सही है, इसको ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है। उसी तरह से कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, एक ऐसा कहना चाहिए कि जिसको कि देख करके कोई उस पर डाउट ना करे, कोई क्वेश्चन नहीं उठाए कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, कहाँ लिखा है कि हम ऐसा करें, या कहाँ लिखा है कि सरकार को ऐसे बनाना है, या ये एज ग्रुप का बनेगा, या उसमें ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ लिखा है। तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, उसी को संविधान कहा गया। किसी भी चीज कोई भी यदि एक बॉडी बनती है, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो उसके भी कुछ एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो उसका जो सबसे पहले दिमाग में आया वो एम.एन. रॉय के दिमाग में आया। उसके बाद में इस पे बेस्ड असेंबली बनी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946 में, और सचिदानंद सिन्हा जो थे वो एडॉक चेयरमैन थे। बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इसका बनाया गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने कि उस संविधान में क्या क्या आना चाहिए, कहाँ कहाँ से, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उसमें रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, और उसके बाद में हमारे लिए वो क्या, कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है, हमारे लिए वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो उन्होंने सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर पढ़कर निकाली और लिखी, और उसको ड्राफ्ट बनाया, उसका एक रफ प्रोफार्मा तैयार किया कि हाँ
कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें होनी चाहिए। 11 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया और जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को। तो ओवरऑल यदि हम पीरियड देखें तो 2 साल 11 महीने और 8 दिन का पीरियड जो है 18 दिन 18 दिन जी, 2 वर्ष 11 में 18 दिन में तैयार हुआ था। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप। चलो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, 18-8 दिन जो भी है ठीक है। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले बना तो उसमें 395 जो आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में हैं और 8 इसके जो है वो शेड्यूल्स थे जो कि अब 12 हो गए हैं। ठीक है, और इसमें जो पहला असेंबली बनी थी उसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 जो हैं वो ब्रिटिशर इंडिया ने इलेक्ट किए थे और जो 93 रिप्रेजेंटेटिव थे वो नेटिव स्टेट्स के थे, दूसरे स्टेट्स के थे। तो इस तरह से एक जो है असेंबली का निर्माण सबसे पहले हुआ और इसके सैलिएंट फीचर्स और ये सब चीजें हम कल देखेंगे। आज के लिए मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा।